Hello everyone, this is Sonia Kaushik. We are doing our chapter Organism and Population from class 12th biology, and this is unit ecology and chapter 13. So last first lecture we have discussed major biomes in India. And what are the major biomes in India? Tropical rainforest, deciduous forest, desert and sea coast. So my dear student, what are the reasons that different types of biomes are present worldwide or in India? So, and even there are regional and local variation are also present in biome, and that leads to formation of wide variety of habitats. So एक biome के अंदर भी different habitats present हो सकते हैं, and that habitats may be harsh and extreme, having extreme condition. Like if you see scorching Rajasthan desert that have a very high temperature, and if you see Meghalaya forest, so they are having a high rainfall, that is rain soaked Meghalaya forest. If you see deep ocean and that have a deep the organisms that are present in deep sea that are adapted to tolerate wide range of pressure. And if you see torrential streams, if you see permafrost area that are remain frosted or having snow all the time, या आप हाई माउंटेन टॉप्स को देखें, इफ़ यू सी थर्मल स्प्रिंग जहाँ पर गर्म पानी निकलता है, इफ़ यू सी सिंकिंग कपोस्ट पिट्स जहाँ हम खाद वगैरह बनाते हैं, सो वहाँ पे अगर आप देखें कितने सारे माइक्रोब्स वहाँ पर प्रेजेंट है. इवन इफ़ यू सी योर इंटेस्टाइन is the habitat of thousands or hundreds of species of microbes, and that are beneficial for us as well, right? So they helps to prevent the colonization of harmful bacteria in our intestine. Now a question arise होता है बेटा, what are the key elements that leads to so much variation in physical and chemical condition of different habitat? अगर अलग अलग habitats है तो वहाँ पर ये जो variations है ये किस वजह से हैं? What is the main reason? So we know that in ecosystem there are some abiotic components and there are some biotic components that leads to this variation, because that affect the organism, that affect the how the organism respond to that biotic and abiotic component. So अगर abiotic components की बात करें, so temperature, water, light and soil, these are the important abiotic component that affects organism. And if we see biotic component that are living one, तो इसमें pathogens that cause disease, the microbes that cause disease, predators. You must have seen a type of competition between two organisms, or that is one organism is prey and predator, शिकारी और शिकार वाला जो सिस्टम है. पैरासाइट जिसमें ऑर्गेनिज्म कैन यूज़ द बॉडी ऑफ होस्ट फॉर देयर फूड एंड शेल्टर. जैसे आपने देखा होगा पैरासाइट्स एक्टोपैरासाइट्स हैं या एंडोपैरासाइट्स हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं, और एक्टो जो बाहर रहते हैं. हेयर लाइस इज अ एग्जांपल ऑफ एक्टोपैरासाइट. And you see Taenia solemn that is present in intestine, that may be the example of endoparasite. In plants you can take example Cuscuta amarbil that is present on other plants as ectoparasite. Competitors, both organisms will have a negative impact on each other. They both compete for same resources. So these are the major factors कि एक बायोम के अंदर भी different local habitats कैसे present हो सकते हैं. Next, a very important term for NEET as well as for CBSE. This is niche. The term is used by Grinnell, or you can say biological niche. Niche क्या होता है बेटा? It is defined as the functional role of any species in an ecosystem. अब हमारे ecosystem में कितनी सारी species हैं, plants की, animals की, तो हर एक का एक वहाँ पे specific role है. जैसे plants producers का काम कर रहे हैं, ठीक है, herbivores प्राइमरी कंज्यूमर्स का काम कर रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी कार्निवोर्स जो है हर्बीवोर्स को कंज्यूम कर. तो हर एक का एक स्पेसिफिक रोल है. प्लांट्स को प्रोड्यूसर इसलिए कहा कि एज वी नो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सन की एनर्जी को सबसे पहले जो लेते हैं दैट आर प्लांट्स, ठीक है. और वी ऑल ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन plants for our food supply. Whether we are vegetarian, non-vegetarian, we directly or indirectly depend on plants, and plants depend for their energy on sun. तो हर और इसलिए उनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं. तो एवरी ऑर्गेनिज्म हैव सम स्पेसिफिक रोल, फंक्शनल रोल, ठीक है. और वी कैन से प्रोफेशन ऑफ अ स्पीशीज, तो दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल नीड. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ईच ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट डिफरेंट रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस. अगर आप कैमल को पोलर एरियाज में ले जाए जहाँ स्नोफॉल होती है तो इट कैन नॉट सर्वाइव. और इसी तरीके से बेटा
अगर आप पोलर बियर को ले आए राजस्थान में, सो इट कैन नॉट सर्वाइव. So different organism can tolerate different range of temperature, and they are able to utilize the different variety of resources that are present in their surrounding environment, and this distinct functional role in the ecosystem defined as niche. तो हम niche को इस तरह से भी define कर सकते हैं कि हर organism का अपने ecosystem में, अपने surrounding environment में, area में कुछ specific role होता है, and that role is called functional role. That job, that profession is called niche. Next two important terms, these are not given in NCERT but specifically important for competitive exams. Ecotone. Ecotone क्या है? अब आप सभी को पता है बेटा, different species form population and different population form community. Lecture 1 में हमने किया था communities क्या है, जहाँ अलग अलग population एक साथ एक जगह पे रहती है तो उसको हम community बोलते हैं. अब जब दो community होंगी, for example this is community 1 and this is community 2, तो एक रीज़न ऐसा होगा बेटा जहाँ ये ओवरलैप करती हैं, कम्युनिटी 1 and 2 विल ओवरलैप. तो ये जो ट्रांजिशन जोन है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच का, इसको इकोटोन कहते हैं. एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि इकोटोन के अंदर कम्युनिटी 1 एंड कम्युनिटी 2 दोनों की ही स्पीशीज़ प्रेजेंट होगी. सो वी कैन से कि जो ट्रांजिशन जोन है टू कम्युनिटीज़ के बीच में, इट हैव ग्रेटर डाइवर्सिटी एंड डेंसिटी. यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज़म है पर यूनिट एरिया, और यहाँ पर ज़्यादा वैरायटी होगी ऑर्गेनिजम्स की एज़ कम्पेयर टू एडजॉइनिंग कम्युनिटी. दोनों कम्युनिटी 1 और 2 दोनों से ज़्यादा वैरायटी और दोनों से ज़्यादा डेंसिटी कहाँ प्रेजेंट होगी? इस ट्रांजिशन जोन में. दिस ट्रांजिशन जोन इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेंशन जोन. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू एज इफेक्ट. अब एज का मतलब किनारा होता है, ठीक है, या एंडिंग पॉइंट होता है. तो what is edge effect? It can be defined as tendency to increase variety and density of some organism at the community border. For example, this is a community, तो और and this is community second, this is community 1, this is community second. तो इस community 1 का भी density and variety यहाँ ज़्यादा होगा, community 2 का भी density यहाँ ज़्यादा होगा. तो वही है, this is the transition zone. और यहाँ पे end पे, हर community के ending पे, हर community के border पे ऑर्गेनिज्म की वैरायटी, ऑर्गेनिज्म की डेंसिटी ज़्यादा होगी. दिस इज़ कॉल्ड एज इफेक्ट. नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट टर्म अगेन हेयर, दैट इज़ बायोटिक पोटेंशियल. बायोटिक पोटेंशियल क्या है? व्हाट इज़ बायोटिक पोटेंशियल? दिस टर्म इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय, और यू कैन से गिवन बाय द साइंटिस्ट चैपमैन, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनिज्म. अब कोई भी ऑर्गेनिज्म इज़ रिप्रोडक्टिवली एक्टिव और नॉट, रिप्रोड्यूस कर सकता है अपनी तरह के ऑर्गेनिज्म को, इट कैन गिव राइज टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर सेम काइंड और नॉट. तो दिस टाइप ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड बायोटिक पोटेंशियल. एंड किसी भी पॉपुलेशन की आने वाले समय में नंबर ज़्यादा होगा, कम होगा, या पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है बायोटिक पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन दैट पॉपुलेशन. नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क इन 3 मार्क्स. 3 मार्क्स में बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट आर द मेजर ए बायोटिक फैक्टर? वी नो इकोसिस्टम के अंदर कुछ बायोटिक फैक्टर हैं, कुछ ए बायोटिक फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म को. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ए बायोटिक फैक्टर एंड वी विल डिस्कस टेम्परेचर इन डिटेल टुडे. आज के लेक्चर में टेम्परेचर डिटेल में डिस्कस करेंगे. वाटर, लाइट एंड सॉइल वी विल डिस्कस इन डिटेल इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. डन. तो बेटा किसी भी इकोसिस्टम में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक दैट इज़ लिविंग, ए बायोटिक दैट इज़ नॉन लिविंग. तो ए बायोटिक कंपोनेंट में आप याद रख सकते हैं TWLS, T फॉर टेम्परेचर, W फॉर वाटर, L फॉर लाइट, S फॉर सॉइल. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया. और आउट ऑफ टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, दिस क्वेश्चन asked frequently in various competitive exam, in NEET, in AIIMS, etc. Which is the most important ecologically relevant factor? So most important ecologically relevant factor is temperature. Very very important. Out of all abiotic factors, students, temperature is the most important factor that affects the distribution of organism in an area. Like अगर हम देखें इक्वेटर में टेम्परेचर, इक्वेटर से अगर हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा. टेम्परेचर डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर्स टुवर्ड द पोल्स. पोलर एरिया में ज़्यादातर लो टेम्परेचर मिलता है कंपैरेटिवली, नॉर्थ पोल में अगर आप देखें, और प्लेन एरिया में कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर रहता है. ठीक है, तो इक्वेटर में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन इसी में लिए मिलता है क्योंकि वहाँ ना तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना ही कम. तो इफ़ यू सी दिस इज़ अर्थ,
तो ये जो मिडल में या सेंटर में जो लाइन क्रॉस होती है बेटा, दिस इज़ कॉल्ड इक्वेटर, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। एंड दिस इज़ नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म या डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज़ ग्रेटर इन इक्वेटर, इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा होगी, पोलर एरियाज़ में ज़्यादा नहीं होगी। कमिंग टू द पॉइंट, टेम्परेचर की हम बात कर रहे थे, तो पोलर एरियाज़ में टेम्परेचर में भी ज़ीरो, में भी सब ज़ीरो, फ्रीजिंग पॉइंट की तरह यहाँ रहता है। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में आप देखें टेम्परेचर में भी हायर देन 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसके अलावा हम थर्मल हॉट स्प्रिंग्स में देखें जहाँ गर्म पानी निकलता है, या डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट जहाँ बहुत गहराई में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बेटा 100 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब सभी तरह के ऑर्गेनिज्म ऐसी टेम्परेचर पे, इतने हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकते, पर स्टिल कुछ आर्के बैक्टीरिया हैं जिनको एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है, एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है, दैट आर आर्के बैक्टीरिया। तो दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ हॉट स्प्रिंग में। जैसे एक थर्मस एक्वेटिकस, अगर आप बैक्टीरिया जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है जिससे एक एंजाइम भी आइसोलेट हुआ है, टैग पॉलीमरेज, T4 थर्मस टैग पॉलीमरेज। किसी और लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये टॉपिक आएगा। टैग पॉलीमरेज एक एंजाइम है दैट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस दैट इज़ प्रेजेंट इन हाई टेम्परेचर। और इस एंजाइम को, टैग पॉलीमरेज को, हम एक टेक्निक में यूज़ करते हैं दैट इज़ PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जैसे जीरोक्स कॉपी बनाने के लिए फोटोस्टेट मशीन होती है, ठीक है, उसी तरीके से PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एक DNA फ्रेगमेंट्स की मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए यूज़ होती है। दिस इज़ अ DNA एम्प्लीफिकेशन टेक्निक। तो वहाँ पर टेम्परेचर कुछ स्टेप्स में ज़्यादा होता है, ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। 2-3 स्टेप्स होते हैं PCR में, डीनेचुरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन। तो मतलब DNA फ्रेगमेंट को मल्टीप्लाई करने के लिए 2-3 स्टेप्स है, तो वहाँ टेम्परेचर 90 डिग्री प्लस भी कई बार डीनेचुरेशन स्टेप में जाता है। तो इतने हाई टेम्परेचर पे कोई भी एंजाइम काम नहीं करता। हमारी बॉडी के एंजाइम 37 डिग्री सेल्सियस या मैक्सिमम 40 तक दे कैन वर्क, राइट। तो इतने हाई टेम्परेचर पे DNA को मल्टीप्लाई करने के लिए एक एंजाइम वहाँ यूज़ होगा दैट इज़ टैग पॉलीमरेज, और वो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं, NCERT में गिवन है, जैसे कि मैंगो ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज़, कनाडा जर्मनी में मैंगो ट्री नहीं होते हैं। या लिपर्ड्स आप देखिए केरला में नहीं मिलेंगे, केरला के फॉरेस्ट में। ट्यूना फिश रेयरली फाउंड इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स इन द ओशंस। तो इन सभी ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है बेटा कि टेम्परेचर हाई है या लो है, इट अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दैट मे बी प्लांट, दैट मे बी एनिमल्स इन एन एरिया। तो यहाँ तक आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी कि वाई टेम्परेचर इज़ रिगार्डेड एज द मोस्ट रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। सबसे ज़्यादा रिलेवेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर ही क्यों है। तो एज वी हैव डिस्कस, तो थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि क्या मेन रीज़न है। तो मेन रीज़न है भाई, टेम्परेचर अफेक्ट्स द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स की वर्किंग को, उनकी फंक्शनिंग को, ठीक है, या उनके स्पीड को अफेक्ट करता है। कौन? टेम्परेचर। आपको पता है ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 to 40 होता है, मैक्सिमम 38-39, और उसके बाद डीनेचर हो जाते हैं अगर हाई टेम्परेचर हो, एंजाइम काम ही नहीं करेंगे। तो बेटा हर ऑर्गेनिज्म के जो एंजाइम्स हैं वो उसी अकॉर्डिंग वर्क करते हैं उनकी बॉडी में। तो एंजाइम्स आपको पता है क्यों इंपॉर्टेंट है, इतनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, तो ऑल आर regulated by different types of enzyme. So we can say the physiological functions of the organism somewhere depends on temperature. Examples देखते हैं, very very important terms, important for CBSE as well as for DEET. यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म, स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म। टेम्परेचर के बेसिस पे, ठीक है, टेम्परेचर को कितना ऑर्गेनिज्म टॉलरेट कर सकता है उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म। यूरीथर्मल, यूरी मतलब वाइड, थर्मल मतलब टेम्परेचर, जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सहन कर सके। द ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो ज़्यादा वेरिएशन सहन कर सकते हैं टेम्परेचर की, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा। स्टेनो वर्ड का मतलब आप याद रखेंगे बच्चों, नैरो रेंज, नैरो, ठीक है, बहुत ही कम वेरिएशन ये टॉलरेट कर सकते हैं। The organism that can tolerate a narrow range of temperature, that type of organisms are called stenothermal organisms. So we can say the levels of thermal tolerance of different species determine their geographical distribution. कौन सा organism कहाँ होगा, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं
कि पोलर बियर जो है ऐसे एरियाज़ में होंगे जहाँ स्नोफॉल होती है, एंड कैमल जैसे ऑर्गेनिज्म डेजर्ट्स में होंगे। तो ये क्यों उनका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे हम बता रहे हैं बेटा? टेम्परेचर के बेसिस पे, ठीक है। सो सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट आर नॉट गिवन इन NCERT इन दिस टॉपिक, टेम्परेचर के टॉपिक में नहीं है। फर्दर यू विल सी दिस टाइप ऑफ रूल्स इन इकोलॉजी। सो वी आर डूइंग हेयर अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ एनिमल। तो टेम्परेचर का अफेक्ट बेटा बॉडी साइज़ पे या बॉडी के पार्ट्स पे भी पड़ता है, ठीक है। अब 2 इंपॉर्टेंट रूल है, बर्जमैन ने दिया था तो बर्जमैन रूल है, एलन साइंटिस्ट ने दिया था तो दैट इज़ एलन रूल। बर्जमैन रूल क्या कहता है कि कोल्डर रीजन्स बर्ड्स एंड मैमल्स अटेन ग्रेटर बॉडी साइज। पोलर एरिया में अगर आप बर्ड्स और एनिमल्स को देखें, मैमल्स को देखें स्पेसिफिकली, तो उनका बॉडी का साइज़ बड़ा होगा। जैसे पोलर बियर साइज़ बड़ा है ना, एंड बॉडी साइज़ छोटा होगा उन ऑर्गेनिजम्स का जो वार्मर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही एलेंस रूल क्या कहता है, ठीक है, ये बॉडी साइज़ के बारे में बात करता है। बर्जमैन रूल किसके बारे में बात कर रहा है? बॉडी साइज़ या बॉडी के पार्ट्स का साइज़। डन। ऐसे ही एलन रूल क्या कहता है? इन कोल्डर रीजन्स मैमल हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम्स। एक्सट्रीमिटीज़ भी वर्ड इनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि जो कोल्डर एरिया के जो मैमल्स होंगे उनके ईयर्स, लिम्स क्या होंगे? छोटे होंगे। क्यों छोटे होंगे? क्या रीज़न है भाई? इम्पॉर्टेंट रीज़न, इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द हीट लॉस। हीट लॉस को कम करने के लिए काम आते हैं। सो आज हमने मेजर एबायोटिक फैक्टर आउट ऑफ टेम्परेचर, वाटर, लाइट, ठीक है, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, इन सब में से हमने आज डिस्कस किया टेम्परेचर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स लाइक यूरिथर्मल, स्टीनोथर्मल organisms. We have discussed today what is soil is one of the important factor. We have discussed edge effect. We have discussed ecotone. We have discussed niche. We have discussed different types of biomes in India. So we will discuss another types of abiotic factor like water, light and soil in our next video. Till then, thanks for watching. If you are watching complete video, and do like, share and subscribe if you want more types of these videos. And most important, if you want some specific topic in detail, so you can comment in the comment box. So this is all about today. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 ऑफ इकोलॉजी in chapter organisms and population. Till then, take care, stay safe, goodbye.